Once again, welcome all of you. Uh, it is the this is the your first day, and today we just go for only registration and some basic question for all of you, and try here total minimum any stream either integrated telecom network cyber security doesn't matter, but minimum 12 to 14 days class for all of you. Maximum time is the 60 minute 30 minutes for minimum and maximum 60 minutes for a one day. This is a basic level 1 course. In this course, we keep in the mind you have no experience regarding any types of network, regarding any types of field visit. So keep in the mind, and due to the current COVID scenario, COVID pandemic, I try to how it's possible online critical training for all of you. And in this case, I have one course before COVID pandemic, network and cyber security. This course was basically 4 week and offline course. But due to the COVID, offline training is off. This is not possible from last year. So in this regard, we just convert this code as a new name, integrated telecom, data network and cyber security. And we try to the complete package for practical manner from day 1 to day 2 and day 3 to up to last day. So we just cover up what is the basic network of communication earlier and how to it migrate in the current network scenario. Like this time we and I and we all online here, how to connect this network, what is the path between you and me. And finally, in the last practical session, up to 4 or 5 session for the practical, in a campus like your college campus, how to connect internet via mobile phone, laptop, and what is the basic phenomena regarding security in your college campus. Okay, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो कोर्स है लास्ट ईयर में नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में था, जो 4 वीक का हमने प्लान किया था। बेसिकली वो ऑफलाइन होता था, बट कोविड की वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया एक नए कोर्स में, ताकि ऑनलाइन आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सब कुछ बताया जा सके, जिसमें हमने पुराना टेलीकम्युनिकेशन, आज का डेटा नेटवर्क और एक कैंपस के अंदर या एक पर्टिकुलर शहर का एरिया के अंदर आप सब लोग इंटरनेट या टेलीफोन सिस्टम कैसे जुड़े हुए हैं, उस पर हम प्रैक्टिकल सेशन बात करेंगे। ठीक है, doesn't matter you are here for 2 week 4 week either 6 week, theory part and contact class for all are the same, either 2 week 4 week 6 week. If here you for 2 weeks, that means 15 days only, and you have just take the class and session and free from the training, and you got the certificate in internship training, no problem. But 4 week they make a report for the this last training, last 4 week training, and 6 weeks he make a minor project. क्लास चाहे 2 वीक का हो, 4 वीक का हो या 6 वीक का हो, सभी का जो कॉन्टैक्ट क्लास है लगभग एक बराबर है। 15 दिन है, सिर्फ एक दो क्लासों का डिफरेंस होगा, आइदर 4 वीक में और 6 वीक में। 2 वीक में कोई रिपोर्ट नहीं बनानी है, सिंपली आप कॉन्टैक्ट क्लास लेंगे, क्लास खत्म होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप चले जाएंगे। जो लोग 1 मंथ के लिए हैं और 4 वीक के लिए, उनको जो भी हमने पढ़ाया है 14 जो 15 दिन के अंदर, उसका रिपोर्ट वो लोग बनाएंगे। ऑलरेडी रिपोर्ट आई विल फॉर्मेट एंड अर्लियर सबमिटेड। आप बहुत लकी हैं कि आपने कई बैच के बाद ज्वाइन किया है, तो बहुत सारे लोग पहले से ही
बना के तैयार कर रखा है, सिंपली यू जस्ट मॉडिफाइड एज पर योर अकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। यदि कॉलेज ने भी कहा है कि किसी चीज़ का रिपोर्ट बनाना है तो डेफिनेटली आप उससे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 6 वीक वाले को एक माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, वो भी मैं आपको बना आपको ऑलरेडी ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें आप लोग बना लेंगे, उसके लिए कोई अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ओवरऑल आपको 15 से 20 डेज लगेगा। बट जो स्टूडेंट 2 वीक्स में भी हैं, जो चाहते हैं कि मैं 4 वीक्स का भी पढ़ लूँ, क्या करना है, तो मेरी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल आर वेलकम, ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि दिस ट्रेनिंग आफ्टर यू आर बिकम न्यू रोल मॉडल फॉर द इंडिया, आप इंडिया के लिए एक अच्छे होंगे, और नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल वी टेक फर्दर ट्रेनिंग एंड व्हाट फील्ड। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है कि देयर इन दिस ट्रेनिंग ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम पार्टिसिपेंट इज अवेलेबल। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, कि मैं आईटी का हूँ। वो कन्फ्यूजन आप लोग को इस ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी दूर होगा। ओके, एनी कोई क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग? वेलकम ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ पूछना है? आप में से जो कौन कौन से लोग हैं जो जिनको हिंदी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? एनी वन ऑफ इन योर बैच यू हैव नो एनी कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज? कोई ऐसा है? या तो मैं पूरा हिंदी में रखूंगा या तो डे विल बी सेपरेट। अगर 50% है तो डे विल बी सेपरेट क्लास। जिनके नाम है उन्हें तो मुझे पता है कि हिंदी आती होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं शायद मैंने रिसीव किया है फ्रॉम साउथ। साउथ से कौन कौन है? एसन ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। रियल मी एक्चु प्लीज रीनेम योर नेम, गो टू द योर नेम एंड रीनेम रियल मी एक्स2। जिसका भी मोबाइल फोन है रीनेम कर लें। मैरी विंसी, Yes, sir. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी सम मिक्सचर लैंग्वेज? Um, Yes, sir. If it is in English, we can clearly understand, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एनी योर मेट, आई थिंक यू एंड योर मेट बोथ आर हियर ना? Yes, sir. Bhanumati, sir. शी इज currently present in this group? Yes, sir. She is only Realme X2 in this name. She's Okay, changing. okay, okay, no problem, no problem. I think only to any third party, it at least three, so I make a separate class, no problem. Anyway, today just combine here class for all of you. So I now receive almost the information from all of you. Okay, all are maximum four week and 2 week. No one here for 6 week. All are the 4 week, either 2 week. Okay. सर अगर हम लोग 4 वीक्स का है तो हम लोग क्या प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं सर? मैंने आपसे कब से क्या बोला? ऑलरेडी टेल की मैं सबसे कह चुका हूँ कि भाई मेरे को तो क्या है, आप में से कोई मेहनत करके कुछ करना चाहता तो मुझे साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई आर वेलकम। हाँ, बट सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल ओनली, जितने का पेमेंट किया उतने में, वो मेरा हाथ बधा हुआ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक हाँ है, ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिव्या, आप 6 वीक का प्रोजेक्ट भी बनाना है आपको? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, गो एड। Okay. Okay, without delay, today just starting, and I will take class from Wednesday. Okay. Shreya Gupta, you are also for 6 week. Okay, okay. Now two participants for the 6 week. Very nice. Okay. Today we just take some basic idea about some terminology, and day after tomorrow. Tomorrow will be no class because tomorrow I get guest speaker from another organization, so time will be very short.
From Wednesday onward, daily class for all of you. A time will be informed in the group, and mostly Hindi available. They will be separate, and uh, we who want to the in English medium, they will be join in the morning. I will inform our time period. Okay, I inform tomorrow time period for the separate, but today just go for the combined for all of you. This is question for open to all. I just share some terms for all of you. All of you know very well these terms. First is the IT. First is the telecom. Telecom versus IT services. Second thing is that intelligent devices. Third is the smart. And okay, today just discuss find these 3 points. First, telecom versus IT services, and second, intelligent devices. Third is the smart device. This is a very important word in the today world. In the field of telecommunication, in field of any scenario, any manner, doesn't matter. So first, the question is, please, any of one of you, tell me what is the comparison, either difference between IT and telecom services. Basic idea in the practical answer. आप में से जो लोग भी जिसमें कंफर्टेबल हो, डोंट वरी. यू आर वांट हिंदी, नो प्रॉब्लम. यू वांट इंग्लिश, डोंट वरी. आप चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आईटी और टेलीकॉम में क्या अंतर है. ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस फॉर इसलिए कि आई जस्ट गिव आइडिया अबाउट योर लर्निंग स्टेज. इट इज हेल्प फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट इज आल्सो हेल्प फॉर मी कि व्हाट आई गिव ड्यूरिंग ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ये मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को कितना आइडिया है. आप फील्ड में पढ़ाई करना, बुक्स में पढ़ाई करना एक अलग मैटर है, वास्तव में प्रैक्टिकली इन शब्दों को कितना अच्छे से जानते हैं, इसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है. तो नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेलीकॉम वर्सेज आईटी सर्विसेज. इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैटर में बताना आपको. यस, कौन बताएगा? नाम बोलना पड़ेगा मुझे या कोई वॉलंटियर, एनीवन? ठीक है, दिव्या आप अनम्यूट करिए. आपका आवाज़ ठीक थी, क्योंकि थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शेयर करूँगा. हालांकि मैसेजिंग भी आ रहे हैं हमारे पास में. ऑलरेडी रिटन बाय द तरुण शर्मा. टेलीकॉम इज अबाउट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ओके. And Divya, IT is related to the programming and computer, whereas telecom is related to electronics. The big confusion between IT and electronics. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे पता चल गया. 2 लोग का आंसर बाकी. रिमेनिंग पार्टिसिपेंट प्लीज गिव द आंसर. अपरा, आकांक्षा, भानुमति, विजित, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यस चंदन प्लीज. अरे बोलो भाई, बोलो, बोलना तो पड़ेगा. आकांक्षा, यस टेल मी. Sir, IT services related to web, through which is web services including. Then telecom is mostly through, I think, analog. ओके. अच्छा, टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं? वी ऑल ऑफ यू, व्हाट वी कैन डू इन टेलीकॉम. करते क्या है टेलीकॉम? हाँ बोलो सभी. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करते हैं.
टेलीकॉम में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, और आईटी में exchange क्या of करते हैं? information. यस तरुण, यस टेल मी। तरुण ने बहुत Okay. आंसर दिए हैं, लेकिन अब बोल के बताओ तो ज्यादा अच्छा है। The telecom exchange of information. ठीक है, मान लिया। और आईटी में? IT, मैं बहुत software, यस software related. सॉफ्टवेयर रिलेटेड। श्रेय गुप्ता, IT इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम इज रिलेटेड टू। ओके, ठीक है। फर्स्ट टेल इन इंग्लिश, हिंदी, देन विल इन इंग्लिश। पहले तो मैं आप सभी को एक बात बताऊं, LTTC गाजियाबाद में, फर्स्ट तो माई सेल्फ KKS यादव, हियर आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन टेलीकॉम एंड मोर देन 20 ईयर। मैंने 20 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए, ठीक है। तो जब हम भी पढ़ते थे तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। व्हेन आई वर स्टडी दैट टाइम आल्सो सेम एज पर यू। चंदन, हमारी बात, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपका? एम आई ऑडिबल, यस या नो? Yes, sir. बाकी Yes, sir. लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो फिर चंदन प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। ओके, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो जैसा अभी भी आंसर आप लोगों ने दिया है, तो एज पर योर आंसर कि यू आर कंप्यूटर साइंस, तो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। यू आर IT, दैट मीन्स नेटवर्क। यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स की टेलीफोन। ओके, बट इन टुडे सिनारियो, आज के समय में सब कुछ बदल चुका है, और पहले से था, लेकिन वही है कि जानकारी नहीं होने की वजह से, जैसा कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, एज पर योर आंसर आई कैन गेस कि ऑल आर स्टिल सेम सिचुएशन व्हेन आई वाज स्टडी बिफोर 20 ईयर, जब 20 साल पहले जब मैं भी पढ़ता था, तक की बात। तो मेरा क्वेश्चन था कि टेलीकॉम वर्सेज IT सर्विसेज में क्या है, तो आप सभी ने आंसर दिया, दैट ओके, नो प्रॉब्लम। इट मे बी आंसर, पॉसिबल आंसर, बट इट इज नॉट एक्यूरेट आंसर। कहने का मतलब ये है, फॉर दिस one question, when in LTTC Ghaziabad, a lot of officer across the India and world also come here, and sometime for some training exam will be also there. So I asked one question for all of officers. They are already qualified, highly qualified, different exam like IAS, IPS, UPSC, JTO. They are competitive, qualified, and come for the join here job, and then go for the induction training. So during, no doubt they all are intelligent. Hopefully all are qualified exam. Definitely all are very intelligent. But I ask some basic question for all of you. Optical fiber. Are you know optical? I write question for all of them. Please write down 5 advantage of optical fiber. Okay, I think some break here, no problem. I asked the question all of them. Their officer, they come first time for your training under induction training. Induction training means after job training. After the getting the job, they go for the training. That means training is known as induction training. Like your training is the industrial training and summer training. If you are getting tomorrow any job, so before going service, there one training for all of you by the company, concerned company, induction training. Yeah, you can say other orientation program also. So I asked the question for all of them. Please write down 5 advantage of optical fiber. What is answer of there? Somebody give. It is cheap. यह सस्ता होता है. It is easy installation and maintenance. इसका installation और maintenance आसान होता है. Third is it is easy to laying. इसका laying करना बहुत आसान है, जमीन के अंदर डालना बहुत आसान है, ठीक है. And nobody can theft it. कहने का मतलब है कि पहले कॉपर वायर a lot of जो चोर होते थे ना, चोरी कर ले जाते थे. बट
इन ऑप्टिकल फाइबर किसी को चोरी करने को कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे आर फाइबर not easy to sold in the market at very low cost, so it is not useful for the theft. ये चोरों के लिए मतलब का नहीं था. तो but one answer is that long distance communication high bandwidth. मैंने 5 ऑप्शन पूछे, I give the answer for 5 point, but only one option is for answer long distance communication high bandwidth, but remaining what 4 point easy installation, nobody can theft, चोरी नहीं कर सकता, easy maintenance. तो 4 पॉइंट जो अलग से लिखते थे वो गलत नहीं है, that is not wrong, but this is not accurate answer. So my question is that कि what is telecom, या what we do in telecom, what we do in IT communication, इन दोनों में क्या अंतर है, हमारा सवाल ये था. तो आप सभी का जो आंसर है that is okay, but this is not accurate answer, because all of you an engineer, सब एक इंजीनियर बनने वाले हो, तो definitely you try to give the basic answer for all of this question, such types of question. In telecommunication, हम लोग telecommunication में क्या करते हैं, what we do telecommunication, very simple. टेलीफोन में दो लोग, 2 people talk to each other. सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर. टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं, 2 person talk to each other, एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ नहीं करते. बट इन टुडे सिनारियो, इन द करंट टाइम, क्या हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं? वी एंड यू डोंट टॉक दिस टाइम. क्या हम लोग कर रहे हैं जूम पे, बात तो हम ही कर रहे हैं. तो क्या ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं है? Is it not telecommunication? In the Zoom communication, we talk to each other. You can today, you can see me, listen me, and also you can see my screen, computer screen. It is also communication. But this communication is not told telecommunication. Why? Because it is also telecommunication. Yeah, in my other, in the practical answer, the new version of telecommunication is known as IT services. The new version telecom is known as IT सर्विसेज. टेलीफोन का ही नया वर्जन है IT सर्विसेज. हाँ, IT सर्विसेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट मे बी रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दैट इज डिफरेंट थिंग. टेलीफोन में कराने के लिए क्या होता है, कि लाइन होनी चाहिए, तो टेलीफोन होना चाहिए था इन द टेलीकम्युनिकेशन. बट इन द IT कम्युनिकेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इन IT कम्युनिकेशन वी नीड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, वो दूसरी चीज हो गई. लेकिन IT सर्विसेज इज वेरी सिंपल लैंग्वेज. द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विसेज. इन टुडे सिनेरियो, वी एंड यू, नोबडी वांट टू टॉक टू ईच अदर. एक दूसरे से बात नहीं करना. दे जस्ट पिक अप द फोन, सेंडिंग टू ईच अदर व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन. Nobody, यहाँ पे number, don't nobody today dial the telephone number. They simply go to the WhatsApp and talk to each other by the sending the messaging, by sending a symbol, sending the text. आप एक दूसरे से आज के जमाने में क्या करते हो, बिना नाक कान का टकला भेज देते हो कि नहीं भेज देते हो? कहाँ बात करते हो? ये भी टेलीकम्युनिकेशन है. तो फर्स्ट रिमूव योर कंफ्यूजन, माइंड कंफ्यूजन. टेलीकम्युनिकेशन आज की डेट में नहीं है. टुडे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इज नॉट अवेलेबल. द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज अवेलेबल. दिस इज द नोन एज IT सर्विसेज. देख लीजिए, यू आर लकी, आप बहुत लकी हैं. यू आर वेरी वेल नोन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिंग ए नंबर. एक नंबर को डायल करना ये आप जानते हैं. बट आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, इफ यू टेल योर अपकमिंग, योर जूनियर, अपकमिंग योर न्यू generation, in my time I have 2 types of communication. One is by the today like internet communication, and we dial to each other telephone number. That is the old time. Okay, तो बहुत ही सीधी भाषा में टेलीफोन का नया वर्जन IT सर्विस कहलाता है. आप बड़े ही लकी हैं कि टेलीफोन नंबर को भी आप IT में
आजकल डायल भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जिन कम्युनिकेशन क्या आपने दूसरे को नंबर डायल किया, डायरेक्टली गो टू द लिंक, क्लिक जस्ट कैमरा, स्पीकर, माइक एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर। करने लगे हम लोग, कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, इंटेलिजेंट डिवाइसेज। कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली यू आर अ सब्सिट्यूट। कहीं से आवाज नहीं सुनाई दो। ये वीडियो जो है ऑलरेडी दिस टुडे वी डिस्कशन वीडियो विल बी शेयर टू इन योर ग्रुप। मैं डेली का जो भी मेरा यहाँ पे क्लास होती है, ट्रेनिंग होती है, इट विल बी शेयर इन द ग्रुप थ्रू यूट्यूब चैनल। तो नो प्रॉब्लम, जो भी हम कहाएंगे सब कुछ आपको ऑलरेडी, इफ यू वांट रिपीट एंड रिपीट, नो प्रॉब्लम, रिपीट। आप चैट के माध्यम से बताएंगे। अभी मैंने जो बताया आपके दिमाग में कुछ समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? आज के बाद हमेशा याद रखिए, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन हो, यू आर वेलकम। ठीक है? यस चंदन, मेरी आवाज आ गई आपको? चंदन कुमार गुप्ता जी, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट डिवाइसेज। ठीक है, और थर्ड इज द स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेज। तो मुझे आप लोग ये बताएं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइसेस? कौन सा डिवाइसेज है इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाएगी? यस, कौन बताएगा? यस बोलिए। नाम बोल रहे हैं, आप ही बताइए, मैं नाम बता देता हूँ वन बाई वन। देवजीत दास, एम आई ऑडिबल? यस सर। पहली वाली बात समझ में आ गई, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी में? हाँ सर। ठीक है, अभी आप वन बाई वन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट टेल मी, इंटेलिजेंट डिवाइस किसको बोलते हो? सर द डिवाइसेस व्हिच कैन कंप्यूट बाय देमसेल्फ लाइक कंप्यूटर। अच्छा, ये टेक्निकल आंसर, ओके, मान लिया। आई जस्ट नो, आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई जस्ट चेंज माई क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल मैनर। सपोज देवोजीत, this question for all of you, but I asking directly to Devojit. They will give the answer by the mic, other they give the answer by the chat. Devojit, just suppose you go to the market. आप मार्केट जाते हैं and buy a fan. Fan means पंखा, fan. Okay. So shopkeeper just welcome to you. Devojit, you are welcome in my shop. You just show your interest, I want to purchase new branded fan. ठीक है, तो in this case shopkeeper welcome to you and just inform to you he have three types of fan. One is the normal fan, second is the intelligent fan, and third is the smart fan. He tell me, Devojit sir, please tell me which types of fan you want to purchase? Normal fan, smart fan. first listen, intelligent fan and then a smart fan. Okay, one by one. Then my question, one by this question, not this for all of you. Today's scenario we just understand, because what is the cyber security? Cyber security is nothing, just basic idea. If you have, then we go for the cyber security. Otherwise आप कर नहीं सकते, चाहे कितना भी आपको सॉफ्टवेयर आता हो, अच्छा आता हो। ठीक है, तो मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द नॉर्मल फैन, व्हाट इज द इंटेलिजेंट फैन, व्हाट इज द स्मार्ट फैन? तो यू जस्ट टेल मी कि व्हाट इज द नॉर्मल फैन। नॉर्मल फैन में क्या होगा? स्मार्ट। सर आई थिंक योर माइक इज ऑफ सर। Devojit, again repeat your answer please. सर इन नॉर्मल फैन, सर नॉर्मल फैन का जैसे होगा सर, स्विचेस हो गए, बटन्स होंगे, ऑन करने से ऑन होगा। ठीक है, वन बाय वन ना, जस्ट वन। ठीक है, एज पर देवोजीत, नॉर्मल फैन इज नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स स्विच एंड प्लग। ओके, मान लिया। ओके ओके, व्हाट इज
Just change the question in a more basic. Are you intelligent? Yes or no? Leave Yes. the fan. Are you intelligent? Yes or no? Yes, sir. Why? Because I can think. अच्छा, मतलब पंखा देख लेगा तो इंटेलिजेंट हो जाएगा? नहीं सर, वो योर इंटेलिजेंट आंसर देखो, आई एम वेरी फ्रेंडली टेल ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे बहुत ही सिंपल भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूँ. समझो पहले, इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक. आपने कहा कि मैंने कहा पंखा वो हो जाए नॉर्मल, तो आपने कहा नॉर्मल होगा. मैंने आर यू इंटेलिजेंट, हमने कहा ओके आई एम इंटेलिजेंट. तो आपका आप इंटेलिजेंट हो तो योर आंसर इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर द फैन. आपका आंसर ऐसा हो कि जो फैन पे भी अप्लीकेबल हो जाए, दुनिया के हर एक चीज पे अप्लीकेबल हो जाए, ऐसा आंसर होना चाहिए. क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड ऐसे नहीं आया, वो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा. ठीक है, तो अब सोच के बताओ. जस्ट एनी अदर, ऑल आर, आई थिंक इन ग्रुप all 16 15 participant in this time. So question for all of you, are you intelligent? Yes or no? Please write in the chat box. Devojit tell ki yes. Intelligence is relative. Okay. Afra. Okay. Next. Akanksha. You just write. Are you intelligent? Yes or no? Yes or no? Give the answer in yes or no. Akanksha, yes. Okay. Remaining participant, yes. Vijit Das is also yes. Elika as Tarun, yes. So all are under very easy. Bhanumati Rai, yes. Yes, 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 yes. Okay. So all are easy, accept ki all are intelligent. Okay. So anyone can explain why you are intelligent? आप में से कोई बता सकता है कि आप इंटेलिजेंट क्यों हैं? Sir, maybe because we can respond to inputs we are given, sir. आप कह रहे रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट है. यू जस्ट ओके. एनी अदर? सौभिक बोल रहे हैं कि वी कैन आवर ऑन वर्क. आई कैन थिंक माई ओन. ओके, बिकॉज वी कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क. सौरभ कुमार. ओके. विजित, आई कैन थिंक एक्ट माई ओन इंडिपेंडेंस वे. Afra, we can make decision based on situation. Okay. Okay, give the all are give the answer. This all are answer may be okay, no problem, and that is you can take this is also good answer. But we try to basic answer. And now listen to me. In the world, everything will become intelligent if they have two things. दुनिया का हर चीज इंटेलिजेंट होगा अगर उसमें ये दो चीजें होंगी. वो मशीनों के ऊपर, इट इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर मशीन, इट इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर ह्यूमन, इट इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर एनी वर्ड, एनी बर्ड्स, एनी एनिमल्स. ये ऐसा नहीं है केवल मशीनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की बात हो रही है, ये सब पे अप्लीकेबल है. फर्स्ट इज दैट सेंस. सेकेंड इज द मेमोरी. ऑल आर हैव सेंस एंड मेमोरी. आप सभी के पास सेंस है और मेमोरी है. व्हाट आई टेलिंग ऑल ऑफ यू, easy to understand sense. If you want to remember, definitely are all intelligent, no doubt. आप डिपेंड ऑन द गॉड. भगवान के ऊपर है, हाथ में है. He give you to more sense, more memory, you are extra intelligent. And sometime अगर एक चीज मिसिंग हो तो क्या हो सकता है? If one thing is missing, half mind है. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द योर फैन, एनी डिवाइसेस. नॉर्मल फैन, Devojit is very right say. Normal fan, that is traditional fan, have only the on off power switch, rotational manually, speed also manually calculate, manipulate. Okay, but in intelligent fan there is one a small chip available, one is sensor is available. One chip is available. This
fulfill with the sense and memory, sensor and memory chip. You can control your fan by the remote. कर सकते कि नहीं? आपके घर में आपका जो पंखा है, अगर उसमें एक सेंसर और मेमोरी चिप लगा दो तो आप रिमोट कंट्रोल के द्वारा आप कंट्रोल करने लगोगे. तो दिस इज द इंटेलिजेंट फैन. अब सेंसर में डिपेंड करता है, चाहो तो टेम्परेचर सेंसर भी लगा सकते हो, चाहो तो कुछ और भी सेंसर लगा सकते हो, डिपेंड ऑन यू. ठीक है. तो दिस इज द इंटेलिजेंट डिवाइस. Each and every intelligent device had to, पुराने जमाने, in old time, in the my parent, it's also my time, earlier television system at your home, totally manual based. Channel will change by the manually rotation, on off manually. Okay, so this is the difference between normal and intelligent. All are intelligent because all are have sense and memory, no problem. ठीक है. सेम चीज applicable on your devices, intelligent devices. It is also contain sense and memory. Okay. Now the next question for Devojit. Are you smart? Intelligent हो गए? अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, रिकॉर्ड भी अच्छी होगी. तो देवोजीत, now you are intelligent. Yes, sir. Okay, because you are sense and memory. Okay, all are intelligent in this group. Now my next question is fire. Are you smart? Yes, sir. मैं एक सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? देवोजीत ने कह दिया कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन why I am asking this question? Today a smart city, a smart building, a smart home, हर चीज में स्मार्ट शब्द उड़ा लगा हुआ है. स्मार्टिंग, जस्ट 1 minute प्लीज. Okay. Yes, Devojit, now tell me, are you telling that you are intelligent and you are also smart? Okay. So why you tell you are smart? Sir, in the context of this question, so maybe because I can communicate. You can communicate. Okay. Any other? आप में से कोई और है? विजित? Intelligent, I think each and everyone. Intelligent means ki sensor and memory, like it human and. Now you are smart. Chalo, again give the same manner. All are smart. Yes or no? Give the answer in the chat box. All are intelligent. Yes. Now, yeah. Or give the answer in yes. Okay. So why you telling you are smart? चलो कोई नहीं, I just tell all of you. Every situation. विजित दास. चलो, okay. For give the answer for this question, I just give an example for myself. In 1995, in 1994 and 1995, that times engineering admission in engineering was very tough, not easy. All India only total maximum possible any student 2000 number of seat for engineering admission, only 2000, either state level, either national level. Every time he have only fight for the 2000 seat only, one candidate. So that time one engineering college, University of Roorkee,
University of Roorkee, today known as the IIT Roorkee. So I just qualified our exam for competition. Only 90 seat for admission total in 1 year in University of Roorkee, that is IIT Roorkee in the current time. So day one, we all 90 students during registration sit in the same classroom. There is a big seminar hall in a university. All 90 students, doesn't matter you belonging to the civil, you belonging to the computer science, you are belong to any other stream, all are sit in the same room. They first day definitely they qualified very top examination that time, and all are come to join for engineering different location of there in India. Nobody know to each other, they don't know to each other. In this case, when starting a class, before starting a class, all are sit same, all are intelligent, no doubt, but they don't know to each other. I am also one of them. I just sit backside and just observe in classroom, and I just see one my colleague, one my new friend. He just stand up in the class. Faculty is not in the come room. Before what the activities I will just explain here. One friend just stand up in the class and just try to go each and every table and try to talk to each and everyone. मैं मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन करीब 90 बच्चे सब एक जगह बैठे हुए थे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं। मैंने एहसास किया कि एक बच्चा ऐसा था जो खड़ा होता था, ही ट्राई टू द ईच एंड एवरी स्टूडेंट टॉक टू देम, उनसे बात करने के लिए कोशिश करता था। सच टाइप्स ऑफ सिचुएशन आई थिंक टुडे इज आल्सो इट विल हैपन ऑल ऑफ यू। मेरे अंदर से इन माई साइड, इन माई वॉइस इनसाइड, ही इज बिकम वेरी ओवर स्मार्ट, वो बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ही ट्राई टू वेरी ओवर बिकॉज ही ट्राई टू shown to each every some different, so just one sound in my inside is very over smart. Okay, एक आंसर तो यहाँ हो गया कि एक लड़का बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है जो सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज दैट सेम टाइम another one student, they don't talk to each other. I have the same another word for him also. एक ही समय में एक और बच्चा बैठा था, वो भी बात नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। ऐसे भी होते हैं बच्चे, दे आर एग्जाम क्वालिफाइड, नो डाउट, आर ऑल इंटेलिजेंट, बट इफ दे डोंट टॉक टू ईच अदर, इन दिस केस आई सेड ही इज वेरी डफर, बड़ा घोंचू। इन द हिंदी लैंग्वेज, इन द बनारसी लैंग्वेज बड़ा घोंचू है। इन इंग्लिश वेरी डफर, ही इज डंकी, बहुत ही गधा है, ठीक है ना, बात नहीं करता। Answer is here. I give the answer for just already given answer by the your Devojit again. See, what is the meaning of a smart? A smart is nothing. Intelligent तो होना ही पड़ेगा, plus communication, that is a smart. Intelligent plus communication. In today's scenario, each and every devices connect to the internet. You can communicate across the world, any place. Yes, Divya, tell me. हाँ दिव्या बताओ। Sir, actually, I wanted to add something to the answer, if I can. ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं बोल देता हूँ। देखो, क्लासरूम के अंदर मैं अपनी बारे में बात कर रहा था कि मैं जब इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया तो क्लासरूम में 90 लोग थे, सारे लोग बैठे हुए थे, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तो जब तक टीचर नहीं आया, तो होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहा होगा या होता है ऐसा कभी कभी,
मैंने जो ऑब्जर्व किया वही चीज बता रहा था कि मैं क्लास में बैठा हुआ था, एक क्लास में एक बच्चा था, स्टूडेंट था, वो खड़ा होता था, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी टेबल पे, कभी किसी टेबल पे बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर बड़ा एक ये बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो थोड़ा ज्यादा दिखाता है, ऐसा होता है, ठीक है। सेम टाइम में एक बच्चा ऐसा भी था जो क्लासरूम में बैठा हुआ था, वो किसी से भी बात नहीं करता था। तो मैंने उसके लिए बोला कि वो बड़ा डफर है, वो किसी से बात नहीं। आंसर इज हियर। आपने ओवर स्मार्ट किसको बोला? जो ज्यादा कम्युनिकेट करा। ऑल आर इंटेलिजेंट बट कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, लेकिन ज्यादा किया तो आपने कह दिया ओवर स्मार्ट, और जिसने नहीं किया उसको आपने डफर बोल दिया। आंसर इज हियर। तो मैं वही बोल रहा हूं, इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइसेस क्या है? जितने भी घर के अंदर आपका, मैं कहूँ स्मार्ट एसी, स्मार्ट एसी का मतलब है कि ये अभी आपके घर में जो एसी लगा है, दैट इज अ नॉर्मल इंटेलिजेंट एसी, नॉट नॉर्मल एसी, इंटेलिजेंट एसी, बिकॉज यू कैन कंट्रोल एसी स्पीड, फैन, टेम्परेचर बाय द रिमोट। बट इन स्मार्ट एसी यू दिस एसी विल बी कनेक्ट टू द इंटरनेट। इस एसी को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और यू कैन कंट्रोल अक्रॉस एनी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो स्मार्ट इज नथिंग। आप कह रहे हो स्मार्ट बिल्डिंग, मैंने बोला स्मार्ट बिल्डिंग, दैट मीन्स कि इन योर बिल्डिंग ईच एंड एवरी डिवाइस लाइक डोर, लाइक AC fan, like light, like anything, it available in your building, each and everything will be connected to the internet. घर में स्मार्ट, ये मैं, my phone is a smartphone. Why you tell my phone is a smartphone? Why you tell my phone is a smartphone? Without internet, this phone is simple phone, normal phone and intelligent phone, not a smart. This a smartphone only if you connect to the internet. Otherwise, this phone is not a smart. आप इंटरनेट जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे इंटरनेट से, ये फोन आपका स्मार्ट नहीं होगा। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, ईच एंड एवरी डिवाइस ऑल आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है ना, दैट इज इंटरनेट होगा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ अपकमिंग फ्यूचर इन द 5G। 5G के कम्युनिकेशन में क्या होगा? ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। 5G कम्युनिकेशन, अपकमिंग जो कम्युनिकेशन इरा, this is the simply 5G, this is the simply IoT, internet of things। समझ में आ गया? Are you getting my point? Yes, sir. Okay, so question from starting कि what is the meaning of you go to the market, purchase a fan, normal fan, there is no any sensor, no any memory, simply on off, power on off, rotation system like this. Okay, second is that intelligent device is intelligent fan, it will be controlled by the remote system, there will be sensor and memory chip available in your phone. Now a smart fan, this fan will be connected to the internet also, you can control across the world, any location of the world from the, बहुत आसानी से आप किसी भी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस रिकॉर्डिंग आई शेयर वन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ending of this session, and from the Wednesday we separate class in two form, one for the English communication and another for the Hindi version। okay, तो जो इन्हें हिंदी आता है हिंदी कर लें, अभी वीडियो हिंदी में मोस्टली, ठीक है। तो जो इंग्लिश विल बी इंग्लिश फ्रॉम द वेडनेसडे, टुमारो विल बी नो क्लास बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। तो बिफोर लिविंग दिस सेशन जस्ट वी सी द दिस वीडियो एंड एंडिंग ऑफ दिस सेशन नाउ। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड दिस सेशन वीडियो विल बी आल्सो अवेलेबल विद इन द 15 मिनट इन योर ग्रुप। Share English version also for all of you.
आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके एक नए क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से मैच तो बनेगा सुपर इंटरेस्टिंग, प्लस बच्चे सॉल्व करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। Okay. Tomorrow there is no class. On the Wednesday, I will be discuss some most important question for all of you just today given at homework. When two person is standing at the Baga border, suppose you and your some mate, are you know Baga border? Baga border is India and Pakistan most popular border. If two person is standing in the same location, Indian people definitely signal of Indian country, and Pakistani people have the signal of the Pakistani signal. If Indian person calling to the Pakistani, what is the path?
This is the homework, some discussion question for all of you. Please work out, and we see in the next session how to communicate, what is the path. If anybody tell me hi, so my sending hi message receive that another person, what is the path. आपके सामने एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस सवाल को आप लोग पूछेंगे, ठीक है ना. Wednesday I will separate the class for completely English version is completely different, and Hindi and mixed version will be separate. Okay. So already message in the group. So somebody they are not easy to comfortable in English, so Hindi, so they will be separate message. Okay. Sir, can you please repeat the question? My question is very simple. Question is if two person standing at the Bagha border. Bagha border is the most popular border between India and Pakistani. So there is two person. One is Indian and another is a Pakistani. Indian calling to the Pakistani mobile. Definitely, it is easy to understand that Indian person have the signal of Indian signal, Indian network, and Pakistani person have the signal of Pakistani signal. If Indian person calling to the Pakistani number, what is the path? Path, या path किस तरह से जाएगा? Way. Like just like if from Ghaziabad to Delhi, if I go to from Ghaziabad to Delhi, there we have the three way. One via the Mohan Nagar, one via the NS24, one via the Rajnagar extension. So just I want to, what is the path? Okay. Just work out. I will discuss in the next session. No problem. Okay. So today, thank you for all of you joining us, and we work out, and then as per your batch, I will give the delivery best. Thank you. Thank you, sir.